Hello, my dear students. We'll discuss today the nutrition in human beings. We had started the chapter life processes, the basic functions or the basic activities which are necessary for the life are known as life processes. हमें जीने के लिए कौन कौन से फंक्शंस एक्टिविटी जरूरी है दे आर द लाइफ प्रोसेसेस द बेसिक फंक्शन द बेसिक एक्टिविटीज which sustains the life are known as life processes. The life processes are four. It is nutrition, respiration, transportation and excretion. We had started the discussion of nutrition and the types of nutrition in the previous classes, and we'll discuss today the nutrition in human beings. The nutrition in human beings, it is holozoic nutrition. Holozoic nutrition means the organism takes the solid food and the complete nutrition occurs within the body of the organism. That is known as holozoic nutrition. The organism takes the solid food, जैसे हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, juices लेते हैं. So the organism is taking the solid food and the complete phases of the nutrition occurs within the body of the organism. That is known as holozoic nutrition. 10th क्लास के बायो के अंदर हमने डिस्कस करना है द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, द न्यूट्रिशन इन अमीबा, द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड द न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजिक न्यूट्रिशन एंड द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. So we'll discuss today the nutrition in human beings, and the nutrition in the human beings is holozoic nutrition. The holozoic nutrition is made up of 5 stages, that is what? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. I will show on the slide one by one the phases of the nutrition in human beings. This we had shown the alimentary canal. क्योंकि एलिमेंटरी कैनाल का आपको नॉलेज होगा तभी आपको पता चलेगा कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसकी अलग अलग फेजेस है कहाँ पर होंगी. दिस इज व्हाट द डायग्राम ऑफ एलिमेंटरी कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग. द एलिमेंटरी कैनाल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल, then buccal cavity. It contains the teeth and tongue. The teeth and tongue की हेल्प से यहाँ पर फूड को च्यू किया जाता है, टेस्ट किया जाता है. Then food goes in pharynx. Pharynx is the common passage for food and air. यहाँ से फूड जाएगा फूड पाइप में, that is known as esophagus. Then यहाँ से फूड जाएगा स्टमक के अंदर. Stomach is the organ which stores the food. Then the food goes in small intestine. Small intestine तक फूड का डाइजेशन हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और एलिमेंटरी कैनाल एंड होती है एनस पे. तो ये हमारा एलिमेंटरी कैनाल है. The holozoic nutrition in the human beings, it is made up of 5 stages. The first stage is ingestion. Ingestion means it is the intake of the food. The taking of the food inside the body, that is what ingestion. ह्यूमन बींग्स के अंदर इंजेक्शन होगा बकल केविटी के अंदर, मतलब खाने को माउथ को खोल के और फूड को बकल केविटी में लेना. दिस इज व्हाट इंजेक्शन. सो टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बकल केविटी इफ यू आर हेल्दी तो इंजेक्शन है, एंड टेकिंग ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी दैट इज ऑल्सो इंजेक्शन. ठीक है, हम हेल्दी हैं, नॉर्मल है, हम बकल केविटी में खाना खा रहे हैं, ये इंजेक्शन है. बट व्हेन वी फॉल इल, अगर हम बीमार हो गए हैं, डॉक्टर नाक से खाना देता है या कैनोला लगा के ग्लूकोज की ड्रिप देता है, तो वो
बकल कैविटी के थ्रू नहीं, बॉडी के अंदर एक तरह से फूड जा रहा है, वो कहीं से भी जाए, तो बेटर टू से इंजेशन टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, दैट इज नोन एज इंजेशन. आफ्टर इंजेशन देयर इज डाइजेशन. डाइजेशन ऑफ फूड है, ये बकल कैविटी से शुरू होगा, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक एंड अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां तक चलेगा डाइजेशन. इसका मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन है, उसकी 5 फेजेस के अंदर सबसे जो लंबा टाइम लगेगा वो डाइजेशन में है. Digestion is the process to convert the complex form of food materials into simpler form. We'll discuss it later in detail. After digestion, there is absorption. Absorption of food है, it is the movement of digested food from alimentary canal to blood, and that is what absorption. After absorption there is assimilation of the food. Assimilation of food है the utilization of the digested and absorbed food to get energy, repair and growth, and that is what assimilation. After assimilation we have egestion. Egestion is the expulsion of waste product, or simply say the removal of undigested food from the body is known as ingestion. So my dear students, we are discussing holozoic nutrition. Holozoic nutrition is made up of 5 stages. The 5 stages are shown. It is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. अब हम इन फेजेस को 1 by 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे इन डिटेल. ये मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है. So we'll discuss in detail first the ingestion. It is the taking of food inside the body. That is what ingestion. Ingestion, ये आप देखें कि एक आदमी है, खाना खा रहा है. This explain well द इंजेशन. हम जो खाना खाते हैं वो एक इंजेशन है. मैंने आपको बताया इफ वी आर हेल्दी, वी आर गुड इन कंडीशन, तो इंजेशन इस तरह से है. इफ यू आर नॉट वेल, वी आर नॉट टेकिंग फूड बाय द माउथ एंड बकल कैविटी एंड वी फॉल इल, डॉक्टर हमें वेन्स के थ्रू ग्लूकोज का ड्रिप देता है. ग्लूकोज एक टाइप ऑफ फूड है, तो कैनुला डॉक्टर ने लगाया और ग्लूकोज का, कैनुला के थ्रू ग्लूकोज की ड्रिप दी जा रही वेन्स के अंदर, तो ये भी एक टेकिंग ऑफ फूड है, ये भी एक इंजेक्शन का टाइप है. अब यहाँ पर अमीबा है. अमीबा के अंदर बताया हुआ है कि अमीबा फूड किस तरह से लेता है. देखो ये अमीबा को आपको शो किया हुआ है. अमीबा एक अच्छा ऑर्गेनिज्म है. इसकी ऐसी शेप बना दी, अमीबा आपसे नाराज़ नहीं हो रहा. अमीबा की ऐसी शेप बना दी, अमीबा आपसे नाराज़ नहीं हो रहा. अमीबा की ऐसी शेप बना दी, अमीबा आपसे नाराज़ नहीं हो रहा. और आपको कोई हल्का सा भी कुछ कह दे तो आप नाराज़ हो जाते हैं. तो अपना अच्छा नेचर डेवलप करना है तो अमीबा से सीखिए. अमीबा की कैसी भी आप शेप बना देंगे, अमीबा नाराज़ नहीं होगा. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल नाउ कि अमीबा के अंदर इंजेक्शन होता किस तरह से है. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अमीबा की आप किसी भी तरह से शेप बना दो. अमीबा की ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये प्लाज्मा लेमा है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा. अमीबा किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा.
how ingestion occurs in amoeba. When a food particle approaches near amoeba, when a food particle approaches near amoeba, from the plasma lemma, an outgrowth is formed. From the plasma lemma, an outgrowth is formed. A temporary structure develops, and this is known as pseudopodia. This is known as pseudopodia. Pseudo यानी false, and podia यानी foot. It is a false foot. भाई foot पाँव एक organ है. अमीबा एक unicellular organism है. So how a cell can have a organ? तो इसीलिए बोला है सूडोपोडिया, फॉल्स फुट, ये झूठ मूठ का ऑर्गन है. So what temporary structure develops in amoeba to take the food? It is pseudopodia. So when the food particle approaches near the amoeba, from the plasma lemma, an outgrowth is formed. That outgrowth is known as pseudopodia. The pseudopodia enlarges and it increases in the size, and the food particle is surrounded by food vacuole. The food particle is surrounded by food vacuole and the food is taken in. So this is how the ingestion occurs in amoeba. We'll show some more examples. कि यहाँ पर ये पैरामेशियम है और पैरामेशियम की बॉडी के अंदर फूड एंटर होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कि अमीबा है, पैरामेशियम है, ये अपनी बॉडी सरफेस से फूड को अब्जॉर्ब करेगा. सो इन दिस स्लाइड वी हैड शोन इंजेशन. तो आप दोबारा से एक ओवरव्यू लें कि ह्यूमन बीइंग्स में हम खाना इस तरह से खाते हैं, ये एक इंजेशन है. इफ़ वी फॉल इल और हम अगर इस तरह से नॉर्मली खाना ना खा पाएँ तो कैनुला से डॉक्टर ड्रिप देता है, वो भी एक इंजेक्शन का टाइप है. अमीबा में इंजेक्शन होता है बाय डेवलपिंग द टेम्पररी स्ट्रक्चर दैट इज व्हाट सूडोपोडिया, और पैरामेशिया में इंजेक्शन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट इंजेक्शन. और होलोजेनिक न्यूट्रिशन की सेकेंड फेज है, एंड द सेकेंड फेज इज digestion. Digestion, it is the longest phase of holozoic nutrition. Digestion starts from the buccal cavity and it completes up to small intestine. ये डायग्राम में आपको शो किया हुआ है डाइजेशन. The food is taken in by opening mouth. It comes in buccal cavity, then pharynx, then esophagus, then stomach, then up to small intestine, जो रेड कलर में आपको शो किया हुआ है. होलोजेनिक न्यूट्रिशन का जो लॉन्गेस्ट फेज है वो डाइजेशन है, और एलिमेंटरी कैनाल का जो मैक्सिमम पार्ट है फ्रॉम बकल केविटी टू स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तक होगा डाइजेशन. डाइजेशन क्या है दैट विल शो ऑन द स्क्रीन इन अ सिंपल वे. आपके सामने पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप देखते चले. डाइजेशन इज द प्रोसेस, इट इज द कन्वर्जन ऑफ complex form of food into simpler form. So complex form of food, it converts into simpler form of food. ये digestion है. Sir, what is the meaning of complex form of food? आप रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, मैं भी खाता हूँ. We take carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है. यू टेक बटर, यू टेक ऑयल्स, यू टेक घी, यू टेक फैट्स. फैट्स भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है. वी टेक चिकन, वी टेक मटन, वी टेक पनीर, वी टेक पल्सेस, वी टेक प्रोटीन्स. हम प्रोटीन्स खाते हैं, तो प्रोटीन्स भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है.
In the digestion, the complex form of food converts into simpler form of food. Carbohydrates converts into glucose, fats converts into fatty acids, proteins converts into amino acids. What is the need of digestion? Digestion की जरूरत क्या है? डाइजेशन होगा तो होलोजिक न्यूट्रिशन की थर्ड फेज अब्जॉर्प्शन होगी. अब्जॉर्प्शन तभी होगा अगर डाइजेशन होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, उसके मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है. दे कैन नॉट मूव फ्रॉम एलिमेंटरी कैनाल टू ब्लड, उनका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा. बट जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड है, उनके मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा है. दे कैन बी अब्जॉर्ब, द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम एलिमेंटरी कैनाल टू ब्लड. सो आई विल शो ऑन द स्लाइड, प्लीज सी ऑन द स्लाइड. अब मैंने लिखा है इनडिफ्यूजेबल फॉर्म ऑफ फूड. जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है वो इनडिफ्यूजेबल है. दैट इज इट कैन नॉट मूव फ्रॉम एलिमेंटरी कैनाल टू ब्लड, इट कैन नॉट मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है वो इनडिफ्यूजेबल है. जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड है वो डिफ्यूजेबल फॉर्म ऑफ फूड है. हम ये कहें कि इनडिफ्यूजेबल फॉर्म ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, इट कैन नॉट बी अब्जॉर्ब. बट जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड है, डिफ्यूजेबल फॉर्म ऑफ फूड है, इट कैन बी अब्जॉर्ब्ड. अब आप देखेंगे कि ड्यूरिंग डाइजेशन द कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज. ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? इट इज ग्लूकोज. Then fats converts into fatty acids and proteins converts into amino acids. ये बेटा आपका 1 मार्क के क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, जहाँ पर 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स फैटी एसिड्स है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स है. This is what digestion. Somebody asks you what is the need of digestion, so that we can absorb the food. तो ये आपके सामने पूरा डाइजेशन शो किया हुआ है. After digestion, we have absorption. Absorption क्या है? The movement of digested food from alimentary canal to blood. This is what absorption आपके सामने लिखा हुआ है, और ये इस छोटे से वीडियो के अंदर शो किया हुआ है किस तरह से फूड का डाइजेशन अब्जॉर्प्शन होता है. बेटा ये हमारा जो ब्लैक कलर में शो किया हुआ है, ये एलिमेंटरी कैनाल है, ये माइक्रोविलाई है, और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको शो कर रही है वो विलाई है. तो मैं थोड़ा सा आपको टेक्स्ट पे लिख के अच्छे से बता दूं. कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइक दिस, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वी हैव द bristle like structures, and the bristle like structures are known as villi. These bristle like structures are known as villi. Villus सिंगुलर है और विलाई वो प्लूरल है. What are the structures present in small intestine that helps in absorption of the food? They are villi. और विलाई के ऊपर ये है माइक्रोविलाई. These are the microvilli. तो ये एक्सप्लेन कर रहा है there is the movement of digested food from alimentary canal
to microvilli, villi, then to blood. This explains absorption, the movement of digested food, the diffusible form of food from alimentary canal to blood is known as absorption. Absorption ऑफ फूड है वो माइक्रोविलाई से होगा, फिर जाएगा विलाई में जाएगा, फिर वो ब्लड में जाएगा. दीज आर द ब्लड कैपिलरीज. दीज आर द ब्लड कैपिलरीज. तो ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स. बेटा ये आपको जो विलाई है उसका स्ट्रक्चर है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. दिस इज व्हाट द विलाई. और ये अंदर आपको शो किया हुआ है ये लैक्टियल्स है. लैक्टियल्स का मेन फंक्शन है द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड दिस लैक्टियल्स एंड विलाई दे आर मर्ज्ड विद दिस ब्लड कैपिलरीज. जहां पर रेड कलर है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जहां पर ब्लू कलर है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर से फूड को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द अब्जॉर्प्शन. आफ्टर अब्जॉर्प्शन देयर इज एसिमिलेशन. Assimilation, the utilization of digested and absorbed food to get energy, repair and growth, and that is what assimilation. We take carbohydrates, we take fats. The carbohydrates and fats are energy giving food. हमारा food है, it is actually made up of 7 food components. That is, if it is a balanced diet, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water and roughage. Carbohydrates and fats are energy giving food. Proteins are the body building food. Vitamins and minerals are required to maintain the proper body functions. वाटर इज रिक्वायर्ड क्योंकि हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट है वो वाटर बनाता है. वाटर के बिना हमारे सेल्स काम नहीं कर सकती. इट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. एंड रफेज इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम. In our body, the energy is released by the process of respiration, the oxidation of food or the oxidation of glucose. We take carbohydrates, we take fats. Carbohydrates and fats up to small intestine, they get digested. Carbohydrates converts into glucose, fats converts into fatty acids. The glucose and fatty acids from small intestine, they goes into the blood, that is what absorption, and by the blood they are carried to the cells. In the cells they goes under oxidation or respiration and energy released in the form of ATP. So this is the utilization, this is the assimilation of the carbohydrates and fats to release energy. Proteins, by the process of digestion, they converts into amino acids up to the small intestine, and the amino acids from small intestine they goes into the blood, and from the blood the small intestines are carried to the liver. तो अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का एसिमिलेशन होगा लिवर के अंदर. In the liver, there is the breakdown of the amino acids known as deamination of the amino acids. That is known as deamination. Deamination of amino acids. Deamination of amino acids. The breakdown of amino acids into the liver, that is known as deamination of the amino acids. After the breakdown of the amino acids, urea, uric acid and ammonia are released as the nitrogenous waste, जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं along with the urine.
एंड द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड दे रीसिंथेसाइज टू फॉर्म बॉडी प्रोटीन्स। आपकी बॉडी को कौन से प्रोटीन्स की जरूरत है? आपकी बॉडी को मस्कुलर प्रोटीन्स की जरूरत है, या हेयर प्रोटीन्स की जरूरत है, या एंजाइम्स की जरूरत है, वो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। दिस इज द एसिमिलेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ऐसा नहीं है कि आपको डोले सोले बनाने हैं और चिकन का लेग पीस लिया, एक इधर फिट किया, एक इधर फिट किया और डोले बन गए। नो, हम जो भी प्रोटीन्स बाहर से एक्सटर्नल प्रोटीन्स को खाएंगे, दे गेट डाइजेस्टेड in the up to small intestine, they get converted into amino acids. Amino acids they are absorbed into the blood carry the amino acids to the liver, और liver के अंदर assimilation of proteins होगा। So this is what the assimilation of the proteins. Carbohydrates and fats for respiration to get energy, and proteins in liver, deamination of amino acids. So this is all about assimilation. Now egestion, the removal of undigested food from the body is known as egestion. हम जो खाना खाते हैं इट इज नॉट 100% डाइजेस्टेड। हम जो खाना खाएं अगर 100% डाइजेस्ट हो जाए तो मॉर्निंग में हमारे टॉयलेट्स का यूज ही नहीं होगा। हम जो खाना खाते हैं, मान लो उसका 60% पार्ट डाइजेस्ट होता है अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इट गेट अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और फिर उसका होएगा एसिमिलेशन टू गेट एनर्जी, रिपेयर एंड ग्रोथ। जो 40% फूड है दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, लूज होगा, पतला होगा, जैसे लूज मोशन के टाइम आता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा ब्लड के अंदर, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन होएगी। जो पतला है वो गाढ़ा होता चला जाएगा, and the facial matter is formed. That is what the potty is formed. The facial matter is formed and it is thrown out through the anus, and that is what egestion. तो ये आपको देखो, ये शो किया हुआ है कि किस तरह से बंदा है, खाना खा रहा है, फिर वो पेट में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस से बाहर आ रहा है। तो ये आपको जो ये शो किया हुआ है यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली इजेशन। ये आपको यहाँ पर इजेशन को शो किया हुआ है, दिस इज शोन हियर इजेशन। ये आपको इजेशन को शो किया हुआ है। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि स्पेस के अंदर जो लोग जाते हैं वहाँ पे 3 महीने के लिए जाते हैं, 6 महीने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर तो इजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी, और ग्रेविटी नहीं होगी तो वो इजेशन नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर वैक्यूम प्रेशर से इजेशन किया जाता है। तो जो स्पेस एक्सप्लोरर है, जो स्पेस शटल में जाते हैं, स्पेस प्रोब में जाते हैं, स्पेस स्टडी के लिए, उनको ज़्यादातर ऐसा फूड दिया जाता है, ऐसे एनर्जी कैप्सूल्स दिए जाते हैं जो 100% डाइजेस्टेड हों, अनडाइजेस्टेड फूड कम से कम बने, क्योंकि वहाँ पर डिफेकेशन की प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल अबाउट इजेशन। अब यहाँ पर जनरली कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज इजेशन, और द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज इजेशन। The removal of undigested food from the body is known as egestion, and the removal of waste materials from the body is known as excretion. तो एक स्लाइड है, इस स्लाइड में आपको शो किया हुआ है that how the egestion is different from excretion. egestion है वो एनस से होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होगा। एक्सक्रेशन है, उसके मेन ऑर्गन्स किडनीज हैं। एक्सक्रेशन को एक्सक्रेटरी सिस्टम करता है, इजेशन जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। सो द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड
और यू से, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट है, इफ इट इज थ्रोन आउट थ्रू द एनस, ये इजेशन है। और हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ब्लड उनको इकट्ठा करता है, किडनीज में ले जाता है, किडनीज उनको फिल्टर करती है, यूरिन बनता है, और यूरिन है हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक्सक्रीशन है। So this is all about the holozoic nutrition in human beings. Okay, so this is all about the holozoic nutrition in human beings. And आप मेरी क्लासेस आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।